in People as Resource, we will talk about the quality of population. Human being is a positive asset and precious national resource which needs to be cherished, nurtured and developed with tenderness and care. So to improve the quality of population, we have to look upon literacy and good health. Some work also be done by the government of India in the field of education as Indian government spent their budget as 0.6% in 1951-52 to 3.3% in 2013. The literacy rate increased by 18%, which is in 18% in 1951 to 74% in 2013. Next one is Navodaya Vidyalaya in each district. Next, Sarva Shiksha Abhiyan, in which 6 to 10 years of every child is compulsory to get education. Next, Mid-day Meal Scheme have been launched. Bridge course and back to school campus have been initiated by the government and curriculum also be revised. Improvement in vocationalism and networking on the use of information technology. Distant education also promoted. IT education institution plays a dynamic growth. As we see in this picture, there are tremendous growth in our literacy rate. In 2011, we can see there are so many improvement in literacy rate. And the second thing is health. Our national policy aims to the improving accessibility of healthcare because dynamic growth of a country depends on good health and life expectancy rate. An unhealthy person becomes a liability for an organization or country. Indeed, increase in longevity of life to an indicator of good quality of life marked by self-confidence. What is life expectancy? Average life of people? What is birth rate? Number of babies from therefore every 1000 people during a particular period of time. Death rate. Number of people per thousand who die during a particular period of time. Infant mortality rate is the death of a child under 1 year of age. To improve good health, life expectancy rates should be improved as in 1951, the infant mortality rate in India has been 147, which is comes down 42 in 2012. Crude birth rates have dropped to 20% and death rate have been dropped to 7%. In Hindi we can say, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी देश के ग्रोथ के लिए उसका एजुकेटेड पीपल का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छे स्वास्थ्य का भी होना ज़रूरी है. यहाँ पे हम अच्छे एजुकेशन की बात करेंगे तो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए एजुकेटेड और स्किल्ड पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमारे भारत सरकार ने भी बहुत सारे काम किए हैं. सबसे पहला तो उन्होंने अपना जो बजट बनाया था उसमें एजुकेशन को महत्ता दी और जो एलिमेंट्री एजुकेशन था उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए. जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो कि इनका बजट था 0.6% लिटरेसी में वो बढ़ के 3.3% हो गया 2013 में. लिटरेसी रेट्स भी बहुत इंक्रीज हुआ. जो 1951 में 18% था वो 2012 में बढ़ के 74% हो गया. नेक्स्ट उन्होंने जो गवर्नमेंट ने उपाय किया शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की हर एक डिस्ट्रिक्ट में.
उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान चलाया, जिसमें 6 से 10 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देना जरूरी हो गया था, जिसको कि 2010 में लागू किया गया। मिड डे मील स्कीम दिया गया, जिससे कि उनके न्यूट्रिशंस जो हैं वो मिलते रहें और बच्चे स्कूल आते रहें। ब्रिज कोर्सेज लागू किए गए और बैक टू स्कूल यानी फिर से स्कूल में वापसी हो बच्चों का, जिस स्कूल बच्चों ने आर्थिक तंगी की वजह से या किसी और कारण से स्कूल को छोड़ा था वो वापस आ जाएं। इम्प्रूवमेंट किया गया डिस्टेंट एजुकेशन को भी, और विकास किया गया वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी। और नेक्स्ट जो आईटी एजुकेशन है उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ और मेडिकल लाइन में भी हुआ, जिसको कि हम निम्न फिगर से देख सकते हैं कि कितना जो प्रोग्रेस है वो हुआ मेल और फीमेल में 2011 में। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। हमारा नेशनल पॉलिसी जो है उसकी हमारी एम ही है कि अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा तो हमारे जीवन के नेशनल इनकम में उसका योगदान भी होगा, और अगर वो अस्वस्थ होगा तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी हो जाएगा। इसलिए हमारे सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, और ज़्यादा जीवन औसत जीवन जो है वो ज़्यादा जीने के लिए, जिससे कि काम करने की ऊर्जा बनी रहे, हमारे सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, जिससे कि हमारा जो बर्थ रेट है वो ठीक से बढ़ा है और डेथ रेट कम हुआ है, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो पहले के समय की तुलना में आधा से ज़्यादा हो गया है, यानी 60 to 70 ईयर्स हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अभी है। इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कहते किसको हैं? ये सबसे पहले वो आयु है जिसमें कि लोग जो हैं कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं उसके बारे में बात होती है। बर्थ रेट है कि 1000 व्यक्ति के बीच में कितने बच्चों का जन्म होता है, और किसी खास पीरियड ऑफ टाइम में। डेथ रेट भी है कि किसी खास पीरियड ऑफ टाइम में 1000 व्यक्ति के बीच में कितने लोग मरते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी है, जो 1 साल से कम उनके बच्चे जो मर जाते हैं उनकी होती है। जिस देश में इन सब चीज़ों का ज़्यादा महत्व होता है उसमें ध्यान दिया जाता है। क्रूड बर्थ रेट भी हमारे भारत में काफ़ी गिरा है, जो 22% हो गया है। डेथ रेट भी पहले की तुलना में 7% हो गया है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी जो 51 में 147 था वो गिर के 42 हो गया है। यानी स्वास्थ्य के मामले में भी हमारे देश ने काफ़ी तरक्की की है और ह्यूमन को एज अ रिसोर्स बनाने के लिए बहुत सा काम किया है।